Hello students, welcome to GIS online classes. Let us start today's topic of chemistry. Hello students, our running chapter is aldehyde, ketone and carboxylic acids. In last lecture we have discussed about nomenclature of carboxylic acid. Now start preparation methods of carboxylic acid. Very simple topic. Preparation method of carboxylic acid, and the very first method is from primary alcohols and aldehydes. From primary alcohols and aldehydes we can easily get the carboxylic acid. So a primary alcohol, that is RCH2OH, treated with a strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent is required. Strong why? Because conversion of primary alcohol to carboxylic acid is a two-step process actually. It is the two-step process. So if you want to convert this primary alcohol, 1 degree alcohol, into carboxylic acid, then we have to perform two-step process, and which is possible in case of in presence of strong oxidizing agent only. Okay, तो टू स्टेप प्रोसेस कैसे होती है? ये ऑक्सीडेशन करवाना है आपको इसका एल्कोहल का, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन. तो एल्कोहल के केस में पोलर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहां से H और H निकलने के बाद में H2 निकलने के बाद में क्या होगा? जैसे यहां से H2 या फिर 2H हम बोल सकते हैं निकल जाएगा, तो क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन. और आपको साफ साफ दिख रहा है क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH, formation of aldehyde takes place. Okay, formation of aldehyde takes place. And what happen in the next is second step. Second step में क्या हो जाएगा? In second step addition of oxygen takes place. और ऑक्सीजन का एडिशन कहाँ होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हाइड्रोजन पे. So this oxygen added to this hydrogen and the compound is formed RCOOH, carboxylic acid. So you can see clearly that it is the two-step process, and we know very well that two-step oxidation process will be performed in case of a strong oxidizing agent if present. Okay, so as the strong oxidizing agent we can take acidified potassium dichromate K2Cr2O7, alkaline KMnO4 we can take, alkaline KMnO4, or we can also take Jones reagent. क्या ले सकते हैं हम? Jones reagent. What is the formula of Jones reagent? Chromic acid in presence of H2SO4 and acetone. Normally it is written as CrO3H2SO4. It is Jones reagent, a strong oxidizing agent which convert primary alcohol to carboxylic acid directly. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड. तो एल्डिहाइड का भी हम यदि ऑक्सीडेशन करवाएं तो एल्डिहाइड से तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनना ही है, सिर्फ एक ही स्टेप में, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हो जाएगा. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. बार बार हमने पढ़ा है इसको प्राइमरी एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में. नाउ द सेकेंड मेथड इज from alkyl benzene. Okay, the method is alkyl benzene. Alkyl benzene means alkyl group is present on benzene ring, like methyl benzene, ethyl benzene. Okay, तो अब जब हमने एरोमेटिक रिंग वाला कंपाउंड लिया तो सीधी सी बात है यहाँ पे एरोमेटिक एसिड बनेगा. एरोमेटिक एसिड लाइक बेंजोइक एसिड. सो व्हाट हैपन in the presence of alkaline KMnO4, क्रोमिक एसिड भी हम ले सकते हैं, एल्केलाइन KMnO4 भी हम ले सकते हैं. एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में क्या होगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या फंक्शन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे उसको देगी. ठीक है, और ऑक्सीजन के देने से वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है कंपाउंड.
तो कैसे हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज, एक बार देखते हैं इसको। CH3 से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज बेंजोइक एसिड लेके आना है, तो देखिए इसकी क्या मैकेनिज्म रहती है, ट्रिक रहती है, वो हम इसको देखेंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। CH दिस इज द मोलिक्यूल ऑफ मिथाइल बेंजीन। ऑलराइट, मिथाइल बेंजीन के केस में KMnO4 आपने ऐड किया, दिस इज बिहेव्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड, सो प्रोवाइड oxygen frequently and vigorous oxidation of this molecule takes place, give the formation of aromatic acid. Okay, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या होगा, जैसे ही KMnO4 ने ऑक्सीजन प्रोवाइड करी तो ऑक्सीजन देते ही यहाँ से H2 गायब हो गया। ओके, क्या गायब हो गया, यहाँ से H2 गायब हो गया, तो फिर 2 वैलेंसी खाली हो गई इसकी। फिर उसने वापस ऑक्सीजन प्रोवाइड करी तो यहाँ से कंपाउंड बन गया CHO। ऑलराइट, CHO को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, और फिर तीसरी ऑक्सीजन जैसे इसने प्रोवाइड करी तो कंपाउंड बन गए यहाँ पे COOH। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन ऐड होती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पे क्या होता जा रहा है, वैसे वैसे लास्ट फाइनल स्टेप में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड गेन हो जाता है। तो हमें पता लगा कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक स्टेप में प्रोसेस नहीं होने वाले यहाँ। तो यहाँ क्या होगा, जैसे ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने यहाँ पर रिएक्शन करी तो रिएक्शन करने के बाद में कंपाउंड यहां पे बन जाएगा। जैसे मान लो बेस की प्रेजेंस में हमने क्या लिया, KOH ले रखा है या NaOH ले रखा है, जो भी ले रखा है, बेस की फॉर्म में हमने KOH लिया हुआ, तो बनना क्या है यहाँ पे, बनना तो है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखेंगे, व्हाई, बिकॉज द मीडियम इज बेसिक एंड इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडिया वी नो दैट base again react with this carboxylic acid and get the formation of after removing H2O give the formation of salt of carboxylic acid। तो यहाँ पे CO पे कौन लग जाएगा, आके K लग जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या गेन करना, आपको क्या ये कुक लेके आना था, यहाँ पे हमें क्या लाना है, यहाँ पे हमें तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करना है। तो एसिड हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और एसिड जैसे ही ऐड करेंगे H+, तो H+ के ऐड करते ही कंपाउंड हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो एसिड का मतलब, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या मिला दिया, HCl मिला दिया। ओके, सो आफ्टर एडिंग HCl व्हाट हैपेंस, यू कैन सी हियर, मान लीजिए HCl मिला तो क्या हुआ, यहाँ से KCl निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा डेफिनेटली। तो हमने जैसे ही HCl मिलाया तो यहाँ से KCl निकल गया। ओके, and after the elimination of KCl molecule the finally compound is benzoic acid। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं, from alkyl benzene using strong oxidizing agent that is alkaline और acidified KMnO4। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, एल्किल बेंजीन को चेंज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। इफ we take ethyl benzene CH2CH3, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑन द बिहाफ ऑफ कंपटीशन एग्जाम ऑल्सो। हमने लिया यहाँ पे KOH, KMnO4, we know that it is strong oxidizing agent, so what happen, तो यहाँ पे हमने कंपाउंड लिया तो यहाँ भी क्या बनने वाला है, यहाँ भी बनने वाला है COOK, और उसके बाद में हमने एसिड मिलाया तो HCl की फॉर्म में वो रिएक्शन करके KCl निकालेगा, एंड देन बेंजोइक एसिड इज फॉर्म्ड। क्या बनेगा, यहाँ से बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद में हमने मान लीजिए प्रोपाइल बेंजीन ली, यहाँ पे प्रोपाइल बेंजीन CH2CH2CH3, this is propyl benzene if treated in the presence of a alkaline KMnO4, then also the formation of potassium benzoate salt of a carboxylic acid takes place। After addition of acid, compound is finally converted into benzoic acid। ओके,
हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, चाहे एक कार्बन का ग्रुप लिया जाए या 2 कार्बन का ग्रुप लिया जाए या 3 कार्बन का ग्रुप लिया जाए, 4 का लिया जाए, 5 का लिया जाए, बनना है आखिर में कार्बोक्सिलिक एसिड ही। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये ऑक्सीजन कहां अटैक करेगा? ये अटैक करेगा अल्फा कार्बन पर। कहां अटैक करेगा? बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन पे अटैक करेगा, जिसको हम बोल सकते हैं अल्फा कार्बन। यहां तो एक ही था तो इस पे अटैक करना ही था, लेकिन इन दोनों में किस पे अटैक करेगा? यहां पे। और यहां पे किस पे अटैक करेगा? यहां पे। व्हाई? बिकॉज द कार्बन एटम which is directly attached to the benzene ring is somewhat positive in nature. Why? Due to the minus R effect of this benzene ring. माइनस R और माइनस I इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन के खींचने की टेंडेंसी की वजह से बेंजीन में रेजोनेंस होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी। ओके, तो इसका माइनस R या माइनस I इफेक्ट मान सकते हैं हम। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये बेंजीन रिंग, फेनिल रिंग। तो फिर क्या होगा? कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, कौन से वाले पे? जो डायरेक्टली अटैच है उस पे ज्यादा पॉजिटिव आएगा, और जहां पॉजिटिव है वहीं पे KMnO4 का ऑक्सीजन अटैक करेगा। ओके, और जैसे ही वो ऑक्सीजन इस अल्फा पे अटैक करता है, बाकी की रिंग यहां से टूट के अलग हो जाएगी। तो याद रखना है, चाहे यहां पे रिंग 3 कार्बन की हो, 2 की हो, 3 की हो, 5 की हो, कार्बन अल्फा पे ही अटैक होना है, और कितनी बड़ी रिंग हो वहां पे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए देखते हैं एक दो एग्जांपल और कि किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है इस रिएक्शन से। द रिएक्शन इज फ्रॉम एल्किल बेंजीन। सपोज द एग्जांपल इज CH3 okay, propyl group is attached to the benzene ring, then what happen? एक तो ये रिएक्शन है, if this compound is treated in the presence of KOH and KMnO4, then what happen? And the second example is, ये क्वेश्चन है, second example is CH3 and CH3 treated with KOH and KMnO4, then what happen? Okay, तो 2 रिएक्शन है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। दोनों में क्या बनेगा? हमने अभी भी कॉन्सेप्ट सीखा है, चाहे रिंग कितनी ही बड़ी हो, मतलब कि जो एल्किल ग्रुप है वो कितना ही बड़ा हो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 5 कार्बन, हमेशा क्या बनना है? यही कंपाउंड बनना है। कौन सा वाला? इंटरमीडिएट बनेगा पोटेशियम का सॉल्ट, यदि पोटेशियम का बेस लिया है तो। एंड देन फाइनली आफ्टर एडिंग H plus ion, the intermediate directly converts into carboxylic acid, that is the aromatic acid. Okay, after the removal of potassium ion presence of in the form of salt, benzoic acid is formed. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि चाहे कितनी बड़ी चेन ले ली जाए तो फिर तो इसी तरीके से यदि हम इसका रिएक्शन करवाएं तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा। If this compound in which tertiary butyl group attached to the benzene treated with KOH and KMnO4, then what happen? Then no reaction will be there. कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। पॉइंट टू बी नोटेड कि यदि ऐसा कोई कंपाउंड यहाँ प्रेजेंट हो तो रिएक्शन नहीं होगी। तो इतनी देर से रिएक्शन हो रही थी, अभी इसमें क्या हो गया? तो याद रखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीजन प्रोवाइडेड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट attack on that carbon atom which attached to the benzene only in the condition if it has hydrogen atoms. यदि वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, जो कार्बन बेंजीन से जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन, उस पे यदि हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 0 है, तो फिर रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट है तभी वो ऑक्सीजन को अटैक कर पाएगा। अटैक करने के लिए क्योंकि H का वहां से निकलना अटैक करने पे जरूरी होता है। तो याद रखना इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इस रिएक्शन की खास बात क्या है? एसेंशियल कंडीशन ऑफ दिस रिएक्शन इज द कार्बन which is directly attached with phenyl ring must has हाइड्रोजन एटम। उस पे क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन एटम
होना ही होना चाहिए, ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑफ द प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is from alkyl nitrile or amides, alkyl nitrile or amides. So the next third method is from alkane nitriles or amides. वेरी 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 सिंपल मेथड। एल्किन नाइट्राइल और एमाइड से किस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे? RC ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज एल्केन नाइट्राइल। इफ हाइड्रोलाइज देन व्हाट हैपन, हाइड्रोलाइसिस इसका करवाया जाएगा एसिडिक मीडियम में, तो फिर क्या होगा इस कंपाउंड का, ये हमें समझ रहे हैं। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने से पहले हमें इसका हाइड्रोलाइसिस का टूल और ट्रिक आना चाहिए, हाइड्रोलाइसिस की मैकेनिज्म आनी चाहिए। तो हाइड्रोलाइसिस आता है, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। फिर भी ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करवाना कैसे आएगा आपको? ट्रिपल बॉन्ड तो याद रखना है कि जब भी हम ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड एक साथ नहीं ब्रेक होगा। ट्रिपल बॉन्ड में पहले डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो वाटर का मोलेक्यूल भी उसी मैनर में ब्रेक होगा। ओके, क्लीवेज ऑफ वाटर ऑल्सो टेक्स प्लेस इन दैट मैनर इन विच ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एटम बिकम क्लीव्ड इन अ वन स्टेप। एक स्टेप में दोनों क्लीव हो जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाएगी वहां पे जहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और 2 हाइड्रोजन जाएंगे वहां पे जहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ओके, सो इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोलाइसिस में क्या करना है? पहले डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। ओके, सो डबल बॉन्ड इज क्लीव्ड ऑफ दिस C ट्रिपल बॉन्ड N एंड वाटर मॉलिक्यूल आल्सो क्लीव्ड इन दिस मैनर। तो ऑक्सीजन इसका अलग हो गया, 2 हाइड्रोजन इसके अलग हो गए। बताओ ऑक्सीजन किस साइड जाएगा? ऑक्सीजन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इट गोस टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। द कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। व्हाई? बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, and more electronegative element attract the electron of carbon, that's why carbon feels the electron deficiency and positive charge arises on that carbon atom. Okay, so oxygen goes to this carbon, and what happen in the next step are C ट्रिपल में से 2 बॉन्ड के टूटने से कार्बन की वैलेंसी वैकेंट हो गई है 2, तो 2 वैलेंसी खाली हो गई, उस पे आके कौन जुड़ गया? O. ओके, नाइट्रोजन इज बॉन्डेड, स्टिल बॉन्डेड विद अ सिंगल बॉन्ड, then N. Now N is high electronegative element and possesses partial negative charge, and these 2 hydrogen atoms are positively charged. So नाइट्रोजन की भी कितनी वैलेंसी खाली हो गई? 2, और 2 वैलेंसी के खाली होने से दोनों हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएंगे इस पे N पर। तो यहाँ पे कंपाउंड आप देख सकते हैं क्या बन गया? एमाइड। तो एमाइड वाले रिएक्शन हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एमाइड वाली रिएक्शन यहीं से आ गई। अब लास्ट स्टेप में बस एक सिंगल बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस बचा है। फिर से पोलर बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन का ही है, दोनों हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख रहा हूं NH2। ओके, फिर से इसका अगली स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करवाना है H+OH-। तो सिंगल बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा? H+OH- ब्रेक होंगे, एक ही बॉन्ड टूटेगा, और इस कंपाउंड का भी एक ही बॉन्ड टूटेगा। ओके, OH- गोज टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज कार्बन, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? यस, ऑक्सीजन भी जुड़ा है, नाइट्रोजन भी जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो कार्बन का चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। कौन जाके जुड़ जाएगा? OH-, एंड H+ गोज टू द NH2, H+ गोज टू NH2। वाई? क्योंकि N का चार्ज कैसा है? पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो व्हाट हैपन? RCO OH, OH कहाँ गया? कार्बन पे। मोलिक्यूल इज कार्बोक्सिलिक एसिड इज द प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, एंड द साइड प्रोडक्ट इज अमोनिया। साइड प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे? अमोनिया, NH2 और एक H+ और इस पे अटैच हो गया है, तो अमोनिया बना यहाँ पे साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो याद रखना है RCN से
कार्बोक्सिलिक एसिड तक कन्वर्जन में कुल 2H2O मोलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज नॉन एज कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्केन नाइट्राइल, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। और यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज फॉर्म इन द केस ऑफ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्केन नाइट्राइल, तो आप बताएंगे एमाइड। पार्शियल मतलब एक वाटर से क्या बनता है, एमाइड, क्योंकि पहले 2 बॉन्ड टूटेंगे उसके एमाइड बनेगा, और 2 वाटर के मॉलिक्यूल के यूज से क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की मेथड, तो हमने पढ़ा अभी फ्रॉम एल्केन नाइट्राइल और एमाइड की हाइड्रोलाइसिस से किस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड गेन कर सकते हैं। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाकी बचे हुए मेथड, जिनमें एसिल हैलाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एनहाइड्राइड और एस्टर से किस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड गेन करेंगे। थैंक यू सो मच।